Hello, friends. I hope you all are fine and doing very well in your life. Well, I'm dedicating this video of mine for the students, for my friends who have been preparing for judiciary lately or who had planned to do judiciary in the coming years. Well, in the wake of the recent Supreme Court decision, which has reinstated the basic criteria of having 3 years mandatory practice as an advocate for sitting in the civil judge examination, which has actually reinstated the debate whether it is in the beneficial interest of the judiciary as a profession, not excluding the interest of the students, given the situations which and the circumstances which this legal fraternity and advocates as a profession offers to the students, especially first generation advocates. Well, in my view, there were certain situations and the problems identified in the judgment by your lordships is not vague, is not absurd, but certainly I feel that without going into the debate and getting into the arguments whether it is only the benefit, it is only the best solution or not, I feel that reinstating or having just only 3 years criteria as a judge is not a very good step because there are certain situations, many hardships, and very difficult situations, not including or not just limited to the financial constraints which first generation lawyers and especially fresh law graduates faces in this situation. तो आर्ग्यूमेंट्स हैं एंड ये सब भी सिचुएशन थी एक्चुअली में थी कि काफ़ी दिक्कत आती थी जो जजेस थे जो अपॉइंट होते थे फ्रेश विदाउट एनी एक्सपीरियंस, तो काफ़ी बार एंड बेंच में काफ़ी ये इशू क्रिएट करता था. बट having 3 years criteria without looking other situations and ignoring just the plight of the students, it is not a very good step. What government would have or the judiciary or your lordships would have thought that would be like reducing the period of 2 years over and a half years, all right, or just mandating, directing that the basic pay for the advocates, it would have gone a long way to serve the interest of both the profession and the advocates and or the students. So I think that, but in this video मैं बात करूँगा कि हम उस चीज़ को कैसे cope कर सकते हैं as a student. Like generally what have been seen that it is not easy to crack the judiciary examination in just 1 year. All right, there are students who have been preparing for 3 years, 4 years. Mostly कुछ ऐसे होते हैं जो 1 या 2 साल एक दो अटेम्प्ट में भी कर लेते हैं, बट अल्टीमेटली 2-3 साल उनको लग जाते हैं. अब जुडिशरी, अब ये एक्सपीरियंस अगर क्राइटेरिया आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जुडिशरी की प्रिपरेशन ही छोड़ दो, बिल्कुल उसकी ज़रूरत नहीं है. तो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं उस चीज़ को? तो आप फ्यू आवर्स आप कोई चैम्बर ज्वाइन करिए, जो 10 साल से अधिक एक्सपीरियंस के एडवोकेट्स हैं उनके अंडर में ज्वाइन कीजिए. थोड़ा सा समय आप डेडिकेट कीजिए अपना लिटिगेशन में, आप थोड़ा सा उनको प्रैक्टिस कीजिए, कोर्ट चाहिए, ऑर्डर्स में अपना नाम लाइए, अपीयरेंस दीजिए अपनी. तो 3-4 आवर्स आप डेडिकेट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए. ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे ही पढ़ते हैं जुडिशरी के लिए. इट विल बी टफ, आई नो दैट, बट एनी हाउ पीपल यू हैव टू मैनेज. तो इसमें ये कर सकते हैं आप सीनियर से आप एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं पढ़ाई के लिए. और दूसरी चीज़ इसमें ये कर सकते हैं कि अब इसमें जो एक्सपीरियंस काउंट होगा प्रोविजन से काउंट होगा. तो 5th सेमेस्टर में ही आप फाइनल ईयर में ही AIB के लिए आप अपीयर हो जाइए, जिससे कि आपका एनरोलमेंट में आसानी हो जाए और आपका एक्सपीरियंस जल्दी काउंट होना स्टार्ट हो जाए. दूसरा स्टेप ये होगा. तीसरा स्टेप आगे ये होगा कि आप उसमें जो है एक एक्सपीरियंस का जो काउंट होता है, 5 ईयर जो प्रोग्राम होता है, आप उसमें अपीयर हो सकते हैं, उसमें एडमिशन आपको लेना चाहिए. तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं आप मैनेज कर सकते हैं. 2-3 चीज़ें हैं जिससे कि आपका एक्सपीरियंस भी काउंट होता रहे, आपकी स्किल्स भी ऑब्वियसली इंप्रूव होंगी और आप जुडिशरी में अपीयरेंस भी दे सकते हैं प्रिपरेशन करने के साथ. और एक स्टेप गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये जो 5 ईयर का लिमिट बना रखा है इन्होंने, कि या तो आप 3 साल की ग्रेजुएशन के बाद आप LLB करोगे या फिर आप 5 साल का करोगे. इनफैक्ट आई मस्ट से दैट और आई वुड सजेस्ट दैट उसकी नीड नहीं है. 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इतना बेनिफिशियल है नहीं. उसको 4 साल का कर सकते हैं इस पीरियड को कम करने के लिए. 3 साल से पीरियड हटाकर 2 साल का कर सकते हैं, क्योंकि 3 साल का ही क्राइटेरिया क्यों है, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है. ये बस ऐसे 3 साल लिख दिया. 1 साल ऑब्वियसली कम होगा, तो मीडियोकर रीजनेबल आप निकाल सकते हैं उसमें. तो इस तरीके से चीज़ें हैं. 4 साल का उसको कर सकते हैं प्रोग्राम को 12th के बाद, या फिर 11th 10th के बाद ही 5 साल का कर सकते हैं उसको. जो भी इस तरीके से गवर्नमेंट को लाना चाहिए, क्योंकि बाकी जो ग्रेजुएशन हैं उसमें भी चेंज आया है UGC वगैरह की तरफ से. दैट वुड गो इन अ लॉन्ग वे इन सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड द जुडिशरी, आई मस्ट से. I hope this video would be helpful for the students and my friends. Thank you so much.